Yes. So yesterday we tried to see the reactivity. Yesterday we tried to see the reactivity of our 15th group elements with hydrogen, with oxygen, and with metals. We also saw the trend of these hydrides, that is acidic strength, basic strength, reducing character. We also saw the trends or the properties of these oxides, acidic oxides, basic oxides, what will happen to the acidity top to bottom, and other things. Today we will see one more thing which we did not cover yesterday, that is your reactivity towards halogens. So when I say halogens, what do we understand, sir? Halogens means the 17th group elements. Who are those? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. These are the 17th group elements. So you tell me, if I compare a 15th group element to a 17th group element, don't you think that 17th group elements are much more electronegative than the 15th group elements? Yes, sir. Yes, sir. 100% true, because left to right electronegativity increase hota hai. As I go from left towards right, electronegativity increase hota hai. So from the 15th group, when I move towards the 17th group, I'll see that my 17th group elements are much more electronegative than the 15th group elements. Now tell me, if any 17th group element is represented as X, then these more electronegative elements will surely show only negative oxidation state. Yes or no? Yes, sir. Because they are more electronegative than the 15th group elements, so obviously वो अपना negative oxidation state ही show करते हैं, because ज्यादा electronegative है, electrons को pull कर लेंगे. Now with a highly electronegative element like this, how will our group 15 element react? How will our group 15 element react with this? Now the group 15 element will surely show positive oxidation state. Yes or no, sir? Yes, sir. Yes. So it will surely show positive oxidation state with a highly electronegative element like X. So then tell me, sir, if it is showing positive oxidation state, what are the possibilities that how many different positive oxidation states are possible for our 15 group elements? It will show either +3 or +5. +3, +3 +5. yes, or else it will show +5. Okay, so if it is showing +3, then it will form EX3 type of halide. इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइहैलाइड्स. If we are having EX5, okay, then we will call them as nothing but our pentahalides. Okay, we will either call them as trihalides if we are having EX3, and we will call them as pentahalides if we are having EX5. Now here there is one thing which we must remember, that nitrogen does not form EX5 type of compound. That means nitrogen does not form pentahalide. समझते हैं इसके पीछे लॉजिक? हम सबको पता है, पहले ही हम लोग आपको बता चुके हैं that the covalency of nitrogen is restricted to 4. That means nitrogen can make only 4 covalent bonds. Why is that so, sir? Nitrogen is having only d orbital. yes, 2s2 2p3. That means उसके पास यहाँ पे एक ऑर्बिटल, दैट इज योर s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स, दैट इज योर 2px, 2py एंड 2pz. इसके पास एग्जैक्टली 1 2 3 4 ही ऑर्बिटल्स हैं, सर. देयर इज नो 2d. As there is no d orbital, it cannot expand its valency. Okay, so there write down note.
nitrogen does not form pentahalides. Nitrogen does not form pentahalides as its covalency is restricted to 4, as its covalency is restricted to 4. This restriction, full stop and then write down, this restriction is due to the absence of d orbital. This restriction is due to the absence of d orbital in the valence shell of nitrogen. Due to the absence of d orbital in the valence shell of nitrogen. Is this clear, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए हम लोगों ने क्या क्या देखा. ओके सर, सबसे पहले हम लोगों ने बताया दैट इफ आर 15 group elements are reacting with 17 group elements, that is our halogens, as 17 group elements are much smaller in size and they are present to the right hand side of the periodic table, they are more electronegative than the 15 group elements. Number one. Number two, as they are more electronegative, they will surely show negative oxidation state with 15 group elements. Good. Now, as they are showing negative oxidation state, our 15 group elements have no other choice but to show positive oxidation state. Very good. What are the different positive oxidation states our elements can show? +3, +5. +5, the group oxidation state, +3, 2 units less than the group oxidation state, that is due to the inert pair effect. Done. Now, sir, if we write the crisscross method and check the halides, we are having two types of halides. One is your trihalides, another one is your pentahalides. Now, when we wrote this trihalide and pentahalide, we came to know one important thing, that pentahalide cannot be formed by nitrogen. अरे ये कैसे हो गया? This is an exception. Why does this happen? Because our nitrogen is lacking a vacant d orbital, or is lacking a d orbital in its valence shell, due to which it cannot expand its covalency. कितने लोगों को समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. I am. Yes, sir. Yes, sir. Now that Yes, we have sir. understood these things, very good. Now that we have understood these things, our work is to understand among EX3 and EX5 which will be more covalent and why. Okay, कोवलेंट कौन ज्यादा होता है और क्यों होता है. ओके तो क्या आप लोग एक छोटा सा गेस मार सकते हैं? गेस नहीं, आप लोगों को लॉजिक पता है, आप बता सकते हैं Sir, EX3 और Yes, sir. Okay. EX5 होगा. Okay, among EX3 and EX5, few students are feeling that EX5 is much more covalent. May I know the reason? Oxidation state ज्यादा Yes, sir. है. Okay, number one reason जो जिग्नेश और ध्रुव को लग रहा है या शुभम को लग रहा है कि पॉजिटिव चार्ज कैटायन के ऊपर जो चार्ज है वो लार्ज है, +5 है. बहुत Yes, sir. अच्छा बात, वेरी गुड. तो ये कौन सा रूल हम लोगों को ऐसा बताता है कि कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा Fajans. रहता है? फेजेंस रूल बताता है. Fajans rule. क्या हम Covalent सबको character याद है sir. बेटा फेजेंस रूल? ग्रेटर Yes, द sir. चार्ज ऑन द कैटायन and smaller the size of the cation, right? Later the And covalent character. larger the size of the anion, okay, and greater the charge on an anion, so obviously हम लोगों को क्या मिल जाएगा? एक covalent compound मिल Covalent. जाएगा. Yes, Yes, so obviously EX5 is more covalent than your EX3. क्या अब पूरा लॉजिक हमारा हेलोजेंस के हिसाब से सब कुछ क्लियर है सर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, there is only one trihalide which is ionic. Except this, all others are covalent in nature. कौन है वो एक exception?
BiF3, बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड। क्या हो रहा है? बिस्मथ इज अ मेटल, लार्ज साइज ऑफ कैटायन, फेजेंस रूल का अगेंस्ट जा रहा है ये। कैटायन साइज इज लार्ज but anion is very small. Very small, sir. And when does this happen? This happens if it is a ionic compound, means इसका जो रिजल्ट क्या है कि ये एक आयनिक कैरेक्टर शो करेगा। सोचिए ना, फेजेंस रूल का एग्जैक्ट ऑपोजिट है ये। बिस्मथ का साइज बहुत लार्ज है, फ्लोरीन का साइज बहुत स्मॉल है। बिस्मथ के ऊपर चार्ज +3 है, फ्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 है। तो बिस्मथ ट्राइफ्लोराइड जो है हम लोगों का सर, दिस is going to be ionic, and whereas all others are going to be your covalent, predominantly covalent, mostly covalent character show करते हैं। कितने लोगों को बेटा ये पूरा लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, बहुत sir. इजी है, राइट? तो सर हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत ही अच्छे से देख लिया सर। एक बार फटाफट में रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को, मेरे साथ साथ अपने मन में रिपीट कीजिए, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है सर? सर, द केमिकल प्रॉपर्टीज वी सॉ दैट we treated our 15 group elements first with hydrogen. When we treated with hydrogen, they formed hydrides. सर हाइड्राइड्स क्या था? सर हम लोगों का हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, हमारा जो 15 ग्रुप एलिमेंट है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे। तो टाइप ऑफ हाइड्राइड जो हम लोगों को मिला वो था EH3 टाइप ऑफ हाइड्राइड। यस और नो सर? Yes, sir. NH3, PH3, SBH3, ASH3, जो भी हम लोगों का BiH3, ये सब हाइड्राइड्स हम लोगों को मिले, राइट? तो इसमें क्या रिवाइज करने वाला बात है सर? टॉप टू बॉटम जो है एलिमेंट हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाता है। यस और नो? Yes, sir. The Yes. bond dissociation enthalpy of the element hydrogen, एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से उसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। देखिए कितने सारे चीजें एक लॉजिक से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहले हाइड्राइड्स को समझा। हाइड्राइड्स के बाद हम लोग चले गए सीधा ऑक्साइड्स पे कि सर ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो हम लोगों ने देखा सर ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू 15 ग्रुप एलिमेंट्स, तो पक्का ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो हम लोगों को दो टाइप ऑफ ऑक्साइड मिल गया, ये या तो +3 शो कर रहा था, नहीं तो +5 शो कर रहा था। तो हम लोगों को ऑक्साइड्स मिल गए E2O3, नहीं तो हम लोगों को मिल गया E2O5। यहां पे आप लोगों को एक लॉजिक मैंने बताया, elements or metals in their higher oxidation state are more acidic than the metals in their lower oxidation state, in their oxides. तो यहां से हमें पता चला E2O5 type of oxides are more acidic than E2O3 type of oxides. Yes or no? Yes, sir. Very good. दूसरा चीज Yes, हम लोगों को क्या पता था? सब लोग मेरे साथ साथ रिपीट भी करेंगे अपने मन में, राइट? देयर इज नो नीड टू स्विच ऑन द माइक एंड रिपीट, बट यस आप लोग अपने मन में आराम से अच्छे से रिपीट कर सकते हैं मेरा हर एक बोला हुआ बात को। चलिए नेक्स्ट हम लोगों ने क्या बताया ऑक्साइड्स के बारे में? सर as we go from top to bottom in the 15th group, we are moving from non-metals towards metals. Sir, non-metals are like non-metallic oxides are acidic in nature, whereas metallic oxides are basic in nature. That means top to bottom जाते वक्त हम लोग acidic oxide से basic oxide में जा रहे हैं, बीच में amphoteric oxide आएंगे. That Yes. means the acidic strength is decreasing, the basic strength is increasing. Do you people agree with this? Yes, sir. Yes. Okay. ये था हम लोगों का ऑक्साइड्स के बारे में। चलिए ऑक्साइड्स के बारे में देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा? मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी देखा। थर्ड हम लोग देख लिए थे मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी। नाउ टेल मी सर, कोई भी मेटल होगा तो वो पक्का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा अपने Yes, sir. वैलेंसी के हिसाब से। तो हमारा जो एलिमेंट्स है 15th ग्रुप के, ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे? नेगेटिव। -3. और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में इनके पास स्टेबल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक है जो कि -3।
तो अब क्रिस क्रॉस करके हम लोगों को ओके क्या मिल सकता है, EM3 टाइप ऑफ सॉल्ट मिल सकता है, EM3 टाइप मिल सकता है, E2M3 टाइप मिल सकता है, EM टाइप मिल सकता है। ऐसे डिफरेंट सॉल्ट्स जो है हम लोगों को मिल सकते हैं, ये हम लोगों ने बताया। एंड फाइनली आज का क्लास में हम लोगों ने रिएक्टिविटी विद हैलाइड्स बताया कि हैलाइड्स हमेशा नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं बिकॉज दिस आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन। तो हमारा E जो है ये पॉजिटिव शो करेगा, दो पॉजिटिव पॉसिबल है, एक है +3 एक है +5। तो हम लोगों के प्रोडक्ट्स में इधर हम लोगों को ट्राईहैलाइड मिल सकता है, नहीं तो हम लोगों को पेंटाहैलाइड मिल सकता है। इसके बारे में लॉजिक्स क्या बताया, सबसे पहले बताया कि नाइट्रोजन पेंटाहैलाइड नहीं बना सकता। इसके पीछे रीजन भी बताया हम लोग, सर नाइट्रोजन कैनॉट फॉर्म अ पेंटाहैलाइड बिकॉज इट्स वैलेंसी इज रेस्ट्रिक्टेड टू 4 बिकॉज इट इज नॉट हैविंग अ वैकेंट d ऑर्बिटल। बहुत अच्छा बात। चलिए EX3 ट्राईहैलाइड है, EX5 पेंटाहैलाइड है। सर EX5 is more covalent than EX3 because charge on the cation is large। इसके बाद एक चीज और देखें, that BiF3 is ionic, rest all trihalides are predominantly covalent, okay, even pentahalides mostly they are covalent, okay। चलिए इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और पॉइंट बताऊं, ट्राईहैलाइड्स में जैसे हम लोग देख रहे हैं सर, नाइट्रोजन का ट्राईहैलाइड्स में अकेले NF3 ही स्टेबल है सर, इसके अलावा और कोई भी स्टेबल नहीं है। आप लोगों को एक कंपाउंड बताऊंगा आप लोगों को, NCl3, इट इज हाईली एक्सप्लोसिव, ओके। कुछ रिएक्शंस ऐसा है जहां पे मैं NCl3 के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जहां पे तुम लोग देखोगे सर NCl3 द कंपाउंड इज हाईली एक्सप्लोसिव। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, नाइट्रोजन तो ट्राईहैलाइड बना सकता है, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि सिर्फ NF3 स्टेबल है, आप क्यों बोल रहे हैं NCl3 NBr3 ये स्टेबल नहीं है करके। आप लोग खुद सोचिए बेटा, नाइट्रोजन इज अ स्मॉल एटम, इसके चारों तरफ बड़ा बड़ा क्लोरीन 3 रहेंगे तो बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्सन होगा कि नहीं? यस सर होगा। यस सर। बहुत ज्यादा रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं? स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा तो ये बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए नाइट्रोजन के पास 3 छोटे छोटे फ्लोरीन एक्सेप्टेड हैं, चलो पॉसिबल, बट छुटकू सा नाइट्रोजन के सामने बड़े बड़े ब्रोमीन या बड़ा बड़ा क्लोरीन इसको बहुत ज्यादा अनस्टेबल कर देता है। क्या सबको ये बात समझ में आया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। सो अगर आप लोगों ने समझ लिया तो अब हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए टुवर्ड्स प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन, ओके। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर दीज कंपाउंड्स, प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन दैट इज N2 गैस। नंबर 1 बताइए सर, अगर आप एक इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं और वहां पे आप कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मतलब क्या निश्चित करना पड़ेगा, दैट मींस व्हाट यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि मेरे इंडस्ट्री के लिए चीपेस्ट रॉ मटेरियल मुझे कहां से मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। Yes, sir. अब मैं सोचूंगा कि मैं कोरापुट में मैं क्या करूंगा, एक टी रिफाइनिंग या टी लीव्स को बेक करके रिफाइन करने का एक इंडस्ट्री लगाऊंगा। सोचूंगा भाई यहाँ आसपास में कहाँ टी लीव्स होता है, टी प्लांटेशन कहाँ होता है, मुझे असम से मंगवाना पड़ेगा, मुझे इधर हमारे बेंगलोर के पास कुर्ग से मंगवाना पड़ेगा ना, उतना दूर से मैं मंगवाऊंगा मेरा रॉ मटेरियल्स, वो ट्रांसपोर्टेशन में ही मुझे बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। यस और नो सर? यस सर। Yes, sir. ऑब्वियसली। तो मैं ये इंडस्ट्री कहाँ सेटअप कराऊंगा, मुझे अगर मन करेगा चला जाऊंगा मैं आसाम में सेट करूंगा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा कुर्ग में, मैं वहां पे सेटअप करूंगा। मुझे अगर कोरापुट में सेटअप करना है तो मुझे देखना है कोरापुट में क्या है ऐसा जो रॉ मटेरियल मुझे बहुत इजीली सस्ते में मिलेगा, जिसको मैं कन्वर्ट करके बहुत प्रॉफिटेबली मैं उसको बेच सकता हूँ। जैसे कि नालको बॉक्साइट यहाँ बहुत ज्यादा मिलता है,
ओके, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत बड़े बड़े माइंस हैं, वो यहाँ से बॉक्साइट को एक्सट्रैक्ट करता है, प्यूरिफाई करता है, भेज देता है अनुगुल, जहां पे वहां पे एक्सट्रैक्शन एल्यूमिनियम का हो जाता है। चलिए जो भी है वो सब तो हम लोग मेटलर्जी पढ़ते वक्त फिर से देखने ही वाले हैं, बट फिलहाल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस में ये रॉ मटेरियल्स के बारे में क्यों बोला, आप लोगों को पता है दैट आर एयर contains almost 76 to 78% of dinitrogen gas. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Don't you think that it will be the cheapest source of nitrogen gas? Yes, sir. 100% yes, right? So yes, sir, dinitrogen is going to be prepared from the cheapest way if we want to prepare, that is by liquefaction of gas. By liquefaction of air, we are going to get our dinitrogen. Remember, sir, when we are doing fractional distillation, what is the meaning of fractional distillation? Okay, देखिए एक बड़ा सा चैम्बर होगा, इस चैम्बर में जो है ऊपर से हम लोग एक लिक्विड को अलाउ करेंगे आने के लिए, और इस चैम्बर में हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर के यूनिट्स रहते हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स। ओके, से फॉर एग्जांपल ये 300 डिग्री सेल्सियस है, ये 350 डिग्री सेल्सियस है, ये 450 डिग्री सेल्सियस है, ये 500 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और ऐसे धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज होते रहता है। ओके, अदरवाइज तुम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एयर को लिक्विफाई कर दिया, सो लिक्विफाइड एयर मींस दैट विल बी ऑब्वियसली इन नेगेटिव टेम्परेचर्स, बहुत लो टेम्परेचर्स में रहेगा। तो उसको जब मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता हूं अलग अलग टेम्परेचर पे, ऑलमोस्ट एट 77.2 केल्विन, 77.2 केल्विन मतलब अभी भी नेगेटिव है, याद रखिए इस बात को। एट ऑलमोस्ट 77.2 केल्विन, फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विड एयर में से नाइट्रोजन जो है गैस बन के बाहर निकल आ जाए। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो हम लोग यहाँ से लिक्विड अलाउ किए और यहाँ पे ऊपर में हम लोग एक छोटा सा ओपनिंग रख देंगे, राइट? तो एट 77.2 केल्विन बाकी सारे लिक्विड जो है, मतलब बाकी सारे गैसेस जो है लिक्विड फेज में ही रहेंगे, अकेले नाइट्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएगा। इसको हम लोग कैप्चर कर लेंगे एंड वी विल कीप इट और वी विल स्टोर इट। ओके, नाइट्रोजन के बाद जो बाहर निकलता है वो ऑक्सीजन है। ओके, नीचे क्या बच जाता है हमारा? ऑक्सीजन बच जाता है। क्या आप लोगों ने अभी आजकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के बारे में सुना? Yes, sir. Yes, sir. कोरोना के टाइम में हर कोई सुना होगा Yes, ऑक्सीजन sir. कॉन्सेंट्रेटर्स के बारे में। तो हाँ। आजकल कुछ लोग हैं जो अपने घर में खुद का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद के रख लिए हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, कितना दिन कोविड हॉस्पिटल में रहेंगे, उनका लंग्स थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड हो गया है, उनको ना ऑक्सीजन पे ही रहना पड़ेगा 1 महीना 2 महीना तक। तो वो क्या कर रहे हैं, ओके हम लोग एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीद लेते हैं, घर पे ही अपना ऑक्सीजन जो है मैं लगा के मैं रहूंगा, जितना देर मैं कोविड हॉस्पिटल में रहूंगा मुझे और इन्फेक्शन हो जाएगा, मुझे देखने वाला कौन रहेगा, ऐसा भी आप लोगों को लग सकता है। तो क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है यही काम करता है। क्या करता है? वो एयर को एब्सॉर्ब करता है। अगर किसी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर देखा है तो उन लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इनपुट करेंगे, वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर क्या करता है? एयर एब्सॉर्ब कर लेता है, उसको लिक्विफाई करके बेटा वो क्या कर लेता है सर? वो डिस्टिल करता है। सबसे पहले नाइट्रोजन गैस निकलेगा जिसको कि वो बाहर निकाल देगा, उसके बाद फिर वो लिक्विफाई करेगा तो ऑक्सीजन आएगा जिसको कि तुम्हारा पाइप के थ्रू पेशेंट को सप्लाई किया जाएगा। These are oxygen concentrators, how they work. I hope you people understand this. Okay. Yes. That is our first industrial Yes. preparation method of our dinitrogen. तो आप लोग क्या बताएंगे या फिर क्या आप लोग समझेंगे यहाँ से? Sir, the first industrial preparation method of nitrogen gas, dinitrogen gas, is the cheapest way, that is from air. We will collect air, which is a free raw material. From that, what we will do is we will try to liquefy this first and then pass it through the fractional distillation chamber.
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर में सबसे पहला गैस जो बाहर निकलता है वही है नाइट्रोजन। कितना पे? अप्रोक्सीमेटली 77.2 केल्विन पे ही नाइट्रोजन बॉयल होके बाहर निकल जाएगा एज ए गैस। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में 77.2 केल्विन टेम्परेचर में बाकी सारे गैसेस जो है लिक्विड फेज में ही रहेंगे। इसीलिए सिर्फ नाइट्रोजन बाहर आया, प्योर नाइट्रोजन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद इसके नीचे वाले चैम्बर में हम लोग अगर 90 केल्विन मेंटेन करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का ऑक्सीजन गैस बाहर आएगा। ओके, अभी ध्यान से देखिए तो तनुश्री जी हम लोगों को पूछ रहे हैं लिक्विफाई कैसे होगा। हाँ तनुश्री जी, याद दिलाऊं मैं? स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, हाँ याद दिलाना पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर में लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पढ़े हैं, याद कीजिए। क्रिटिकल टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड, याद आ रहा है सबको? यस सर, याद। Yes, sir. सो यस, हाउ टू लिक्विफाई अ गैस हम लोग पढ़े थे वहां पे। तो उसी तरह से हम लोग एयर को लिक्विफाई करेंगे और नाइट्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट कर देंगे। ये था एक इंडस्ट्रियल मेथड। चलो अब हम लोग समझेंगे हमारा लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, लैब प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइनाइट्रोजन हम लोग देखेंगे। ओके सो चलिए, सो नंबर 2 लोग लिख देंगे लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड। चलिए, अंडर दैट द फर्स्ट लैब प्रिपरेशन मेथड जो हम लोग जहां से नाइट्रोजन गैस को प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके, दैट इज बाय यूजिंग ammonium chloride and treating it with your sodium nitrite. Okay, you take sodium nitrite, that is NaNO2, and you treat it with ammonium chloride. Now let us understand very properly, sir, what is going to happen over here. Sodium nitrite aqueous I am taking and I am treating it with ammonium chloride. Both are aqueous solutions, both are mixed with water. Now tell me, immediately by seeing this reaction, क्या आप लोगों को एक चीज पता चल रहा है कि नहीं? सर सोडियम एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सोडियम विल इमीडिएटली टेक अवे क्लोरीन टू फॉर्म NaCl। सबसे पहले ये पता चल रहा है कि नहीं आप लोगों को? यस सर, पता चल रहा। Yes, वेरी sir. गुड। इसके बाद क्या होगा? NH4 प्लस एंड NO2 में से 2 moles of water will be produced. H4O2, H2O, H2O, 2 moles of water will get removed. यस सर। और जो बच जाता है आपके पास वो है डाइनाइट्रोजन, दैट इज योर N2 गैस। ओके, जो कि एस्केप कर जाएगा आपके सॉल्यूशन से बाहर। So whenever we are treating sodium nitrite with ammonium chloride, see carefully, sir, you will understand this reaction. It's a beautiful reaction. When I am taking sodium nitrite and I am treating it with ammonium chloride, what is happening? What is happening is sodium will immediately react with highly electronegative element, that is your chlorine, to form NaCl. Now ammonium chloride will go closer to NO2, where from the ammonium ion, hydrogen will get reacted with oxygen to form water. So 2 moles of water will get removed from there. And what is left out is nothing but your dinitrogen gas, that is your N2 gas. Is this clear? यस सर। Yes, sir. Okay. Remember, sir, during this reaction, it is not that only N2 will be produced. It is not that only N2 will be produced, but इसके साथ साथ हम लोगों को small amount में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज योर NO, एंड HNO3 भी प्रोड्यूस होते हैं। Okay, along with NaCl, H2O and N2, small amount of NO and HNO3 are also produced during this reaction. तो ये जो NO और HNO3 प्रोड्यूस हो रहा है सर, उसे हम लोग क्या करेंगे? These can be simply removed by passing this gas through sulfuric acid. हम लोग क्या करेंगे? ये जो पूरा प्रोडक्ट्स हम लोगों का मिल रहा है ना, नाइट्रोजन गैस है,
इसको जो मिला हम लोगों को, कलेक्ट किया हम लोग, इसको हम लोग H2SO4 के थ्रू पास कर देंगे, through a solution of H2SO4. Now, do we all know that H2SO4 is a very good dehydrating agent? Yes, sir. अगर नहीं पता है तो आज याद कर लेंगे। क्या याद रखेंगे? H2SO4 is a very good dehydrating agent. हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए थे, किसको याद है? सुगर लाए थे और उसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाले थे, हाँ सर, याद है। पूरा All कार्बन ब्लैक में कन्वर्ट हो गया था। Yes, sir. यस सर। एक बच्चा यस सर बोल रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हैं सर आप लोग? कुछ किसी को याद नहीं है। We took sugar, that is carbohydrate, and we tried to treat it with concentrated H2SO4. Yes, sir. याद। यस सर, याद है। So H2SO4 is a very good dehydrating agent. ये क्या करेगा? Simply water remove कर देगा। मैं जब ये एक्सपेरिमेंट बताया था तब भी आप लोगों को बताया था that H2SO4 is a very strong dehydrating agent. ये जिसके साथ भी रिएक्ट करता है वहां से सारा वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है। Yes, sir. इसीलिए जब हमारे स्किन पे गिरता है तो हमारे स्किन से सारे वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हमारा स्किन जो है बर्न हो जाता है। हम लोग ये भी बात किए थे, बहुत कम लोगों को याद है। Right. So what we will do is we will pass it through sulfuric acid containing potassium dichromate, that is K2Cr2O7. Okay. So तो जब हम लोग इसको पास करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? आपका सारा impurities जो है वो रिमूव हो जाएगा, राइट? और तुम्हारा प्योर नाइट्रोजन गैस जो है वो बाहर आ सकता है। इट कैन बी। तो सबसे पहले मुझे बताइए, चलो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले, क्या ये समझ में आया लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड? Yes, Yes, sir. sir. फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से देखिए सर। द फर्स्ट लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ डाइनाइट्रोजन व्हिच वी आर लर्निंग इज दिस। वी आर टेकिंग NaNO2 sodium nitrite, a aqueous solution of sodium nitrite. We are treating it with ammonium chloride. What is happening is sodium is going to react with your chlorine to go away as NaCl. NH4 प्लस से जो H है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बन के बाहर निकल जा रहे हैं, and what we are left out with is nitrogen gas, dinitrogen gas. Now in this reaction small amounts of NO and HNO3 are also produced as impurities. So इनको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो गैस प्रोड्यूस होता है ना सर, उसको हम लोग सिंपली एक सोल्यूशन के थ्रू पास करते हैं। वो सोल्यूशन कौन है? H2SO4 प्लस पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज योर K2Cr2O7। जब जो नाइट्रोजन गैस थोड़ा इंप्यूरिटीज के साथ जब निकल रहा है उसको अगर मैं पास कर देता हूं H2SO4 प्लस K2Cr2O7 के सोल्यूशन के थ्रू, तो मेरा इंप्यूरिटीज जो है वो सिंपली उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं और प्योर नाइट्रोजन गैस जो है वो बाहर आता है। कितने लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Very good. Very good, sir. Now let us move on to our second laboratory preparation method. What is that? We are going to prepare it by decomposition of nitrogen containing salt. तो नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉल्ट मतलब क्या? हम लोगों को हेवी सॉल्ट्स लेना पड़ेगा, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट का नाइट्रोजन कंटेनिंग सॉल्ट्स लेना पड़ेगा। उसमें से एक क्या है सर हम लोगों का? एमोनियम डाइक्रोमेट, NH4 Cr2O7. Sir, we can take ammonium dichromate and we can heat it strongly. इसको हम लोग बोलते हैं thermal decomposition of ammonium dichromate. क्या आप लोगों को याद है 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे डिकम्पोजिशन रिएक्शन? Yes, sir. जहां पे याद। हम लोग पढ़े Yes, sir. थे थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, Yes, sir. इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। सो दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन, दैट मींस बाय हीटिंग। तो हम लोग एमोनियम डाइक्रोमेट सॉल्ट को लेंगे, उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे, उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे। तो सबसे पहले डाइनाइट्रोजन तो प्रोड्यूस होगा, ये हम लोगों को पता है ही, बिकॉज दिस इज द प्रिपरेशन Yes, मेथड sir. ऑफ डाइनाइट्रोजन। Along with that 4 moles of water will get removed and along with that your Cr2O3,
the oxide of chromium oxide, that is Cr2O3, will also get removed. So this is called as thermal decomposition. Sir, we are going to heat something very strongly such that it will break down, it will decompose into smaller compounds. So we are taking ammonium dichromate and we are heating strongly, we are doing thermal decomposition, we are getting nitrogen gas, along with that 4 moles of water and chromium oxide, that is your Cr2O3. Do you people agree with this? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम लोग बोलोगे सर नहीं 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 नहीं, आप जो बोल रहे हैं ना, आप अभी भी जो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस किए इसके साथ थोड़ा सा वाटर निकला, पिछली बार भी जब आप लोग आप नाइट्रोजन गैस बनाए तो तब भी थोड़ा सा वाटर निकला, मतलब ये जो वाटर है, स्टीम है, ये तो इम्प्यूरिटी जैसा निकल ही रहा है। पिछली बार तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और HNO3 भी निकल गया था इम्प्यूरिटीज में। सर हम लोगों को ना इम्प्यूरिटीज नहीं चाहिए, आप एक ऐसा मेथड बताइए जिसमें सिर्फ प्योर नाइट्रोजन गैस आएगा। तो याद रखिए, if I want to produce very pure nitrogen gas, if I want to produce very pure nitrogen gas, बिलीव नहीं करोगे ऑलमोस्ट 98% प्योर नाइट्रोजन गैस आता है यहाँ पे। वेरी प्योर नाइट्रोजन गैस अगर मुझे प्रिपेयर करना है, देन आई कैन प्रिपेयर इट फ्रॉम मेटल एजाइड्स। कहां से प्रिपेयर कर सकता हूं? मेटल एजाइड्स से। व्हाट आर एजाइड्स? ध्यान से देखिए, तो एक एग्जांपल है हम लोगों का बेरियम एजाइड। ओके सर, व्हाट आर दीज एजाइड्स? एजाइड बोलने से N3 विद ए माइनस रहता है, इसको हम लोग एजाइड बोलते हैं, एजाइड ग्रुप बोलते हैं हम। N3 विद अ माइनस, एजाइड ग्रुप। तो बेरियम 2 प्लस विद N3 माइनस क्रिस क्रॉस करेंगे तो हम लोगों को बेरियम एजाइड क्या मिलेगा? BaN3 whole 2। yes or no? Yes, sir. बेरियम एजाइड, इसको भी क्या करेंगे हम लोग? सिंपल थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। मजेदार बात क्या है, बेरियम इज अ मेटल, सॉलिड मेटल। तो बेरियम एजाइड को जब आप लोग स्ट्रॉन्ग डिकम्पोजिशन करते हैं, एक ही गैसियस प्रोडक्ट निकलता है जो कि नाइट्रोजन है। बाकी बेरियम जो है वो तो सॉलिड है या फिर लिक्विड फेज में रहेगा, तो वो तो तुम्हारा सॉल्यूशन फेज में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन गैस निकलेगा ये प्योर नाइट्रोजन होगा, क्योंकि इसके साथ मिक्स होके निकलने के लिए कोई गैसियस प्रोडक्ट, कोई वेपर फेज प्रोडक्ट नहीं है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है। Yes, sir. सब लोग समझ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Have a closer look. Such easy the preparation methods of dinitrogen are. Sir, आंख बंद कीजिए, everyone try to recall it from with me, right? Number 1, sir, we can prepare dinitrogen simply by liquefaction of air. तो हम लोगों ने देखा, sir, if we take air and liquefy it, followed by fractional distillation, then at approximately 77 Kelvin, the first gas which is going to come out is your nitrogen. Next, नाइट्रोजन के बाद जो गैसियस फेज में जाता है, जो लिक्विड मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बाहर निकलता है, वो है आप लोगों का ऑक्सीजन। वो भी कहां पे? अराउंड 90 केल्विन पे। चलिए, ये तो हो गया आपका पहला मेथड। नंबर 2, सर वेरी इजी सर, सोडियम नाइट्राइट सॉल्ट को अमोनियम क्लोराइड के साथ ट्रीट कर रहे हैं। First of all, sodium will take away chlorine to form sodium chloride. Ammonium will come closer to nitrite, where 2 moles of water is removed. तो बच क्या गया हमारा? डाइनाइट्रोजन गैस। Simple, right? Next, sir, we are taking a nitrogen containing salt. Okay, we are taking, say for example, ammonium dichromate. इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से पहले पिछले वाले मेथड में हम लोगों को इम्प्यूरिटीज कौन आया था? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड HNO3। उन्हें रिमूव करने के लिए क्या करते हैं? ए सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड K2Cr2O7, उसके थ्रू हम लोग पास करेंगे। वेरी गुड सर। नेक्स्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ योर अमोनियम डाइक्रोमेट। सिंपली डाइनाइट्रोजन गैस मिलेगा, Cr2O3 मिलेगा एंड along with that water molecules निकलेंगे। अब सर नहीं नहीं बहुत हुआ, हम लोग ना ये सारे मेथड्स नहीं देखना चाहते हैं जहां पे इंप्यूरिटीज निकल रहा है। एक ऐसा मेथड बताइए जहां पे सिर्फ प्योर नाइट्रोजन गैस निकलेगा।
The best one is your any metal azide. You can take sodium azide, you can take barium azide. Okay, the example I have given is barium azide. Take barium azide, heat it strongly, do thermal decomposition. What you are going to get is simply your nitrogen gas. ये प्योर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि गैसियस फेज में सिर्फ नाइट्रोजन है, बाकी कुछ इंप्यूरिटीज गैसियस फेज में नहीं जा रहा है। तो आप लोग एक रिएक्शन कंटेनर के ऊपर अगर गैस को कलेक्ट करेंगे, मतलब आप लोग सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस को ही कलेक्ट करते हैं। कितने लोगों को प्रिपरेशन मेथड समझ में आ गया? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so once we have understood preparation methods, now we have to move on for our properties of dinitrogen. Let us understand properties of dinitrogen, that is your N2. Okay, so what are the properties of dinitrogen? First and the foremost thing, जो हम लोगों को पता है, what is that? Dinitrogen is a colorless, odorless, tasteless, non-toxic gas. What is dinitrogen, sir? It is colorless, odorless, it has got no odor, no smell, tasteless, it has got no taste, and it is a non-toxic gas. तो क्या अब आप लोगों को समझ में आ रहा है क्यों लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग आइसक्रीम्स बना सकते हैं, या लिक्विड नाइट्रोजन में हम लोग किसी भी चीज को बहुत जल्दी लिक्विफाई करना चाहते हैं तो किचन में एक्चुअली शेफ लोग जो है जनरली कुकिंग में यूज करते हैं? क्यों? बिकॉज इट इज ऑर्डरलेस, इट इज टेस्टलेस, तो मेरा फूड का कोई भी टेस्ट को इसको अल्टर नहीं करेगा, एंड इट इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर. Yes, Such a sir. beauty thing, isn't it? So it is colorless, odorless, and tasteless, non-toxic gas. And then nitrogen is going to exist in two different isotopic forms, that is your nitrogen 14 and nitrogen 15. Okay, ये वाटर में बहुत ही कम soluble है. Okay, बहुत बहुत कम soluble होता है वाटर में. Obvious सा बात है सर, हम सबको पता है, because nitrogen is very very less reactive at low temperatures. Yes or no? Yes, sir. हमारा नेक्स्ट पॉइंट वही होने वाला है. डाइनाइट्रोजन इज नॉन रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर. व्हाई? तो हम लोग वो पॉइंट्स बताएंगे जो कि हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं. क्या है वो? नाइट्रोजन हैज अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन इट. द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर नाइट्रोजन इज वेरी लार्ज. तो इसको पहले ब्रेक करने के लिए हम लोगों को थोड़ा हाई टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा. Yes or no? Yes, sir. Yes. Yes, sir. But जैसे ही थोड़ा हाई टेम्परेचर पे चले जाते हो ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है, राइट? लो टेम्परेचर्स पे इनर्ट है, बट जैसे ही थोड़ा हाई टेम्परेचर्स पे चले जाते हो ये नॉन रिएक्टिव सॉरी ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है और ये नाइट्राइड जैसा रिएक्ट करता है. फॉर एग्जांपल, ओके, आप लोगों का लिथियम के साथ अगर आप लोग रिएक्ट किए नाइट्रोजन गैस को, से फॉर एग्जांपल N2 गैस को आप लिथियम के साथ ट्रीट किए, तो ये इमीडिएटली बन देगा आप लोगों का लिथियम नाइट्राइड. या फिर मैग्नीशियम के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे तो ये इमीडिएटली बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2. सो ये बताना क्या कोशिश कर रहा है यहाँ पे? ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारा नाइट्रोजन जो है वो -3 ऑक्सीडेशन के साथ रिएक्ट करेगा, ओके, एट हाई टेम्परेचर्स. क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes. वेरी गुड सर. नाइट्रोजन गैस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक है सर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक है सर, वो है प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया. प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं. Reverse process, sir. क्या बोलते हैं हम लोग? हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं. That means nitrogen reacts with hydrogen in order to produce ammonia, okay, in presence of few catalysts and a very good temperature, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे हैबर्स प्रोसेस में, अभी नहीं बात करेंगे. बट नाइट्रोजन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इज दिस: नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ammonia and hydrogen in order to produce your ammonia. So how is it going to react? 1:3 ratio में 1 mole of nitrogen will react with 3 moles of hydrogen to produce 2 moles of ammonia. That is one important reaction. And one final reaction जो है वो है dinitrogen will react with oxygen to form
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, बट ये रिएक्शन जो है एट हाई टेम्परेचर्स होता है, एट हाई टेम्परेचर्स अराउंड आप लोगों का 2000 केल्विन टेम्परेचर में आप लोगों का ये रिएक्शन होता है। मैं ये रिएक्शन को इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ सर? जनरली हमारे जितने भी सुपर जेट्स हैं, हमारे सुपरसोनिक जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, जितने भी हमारे एरोप्लेन्स हैं, ये जब एटमॉस्फेयर में उड़ते हैं सर, सो दे फ्लाई एट हाई एल्टीट्यूड्स, और उनका जो इंजन्स होते हैं वो काफी पावरफुल होते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है। सो इनसाइड दीज इंजन्स व्हेन कंबशन इज टेकिंग प्लेस, इतना हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है सर? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हार्मफुल क्यों है? ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हाई एल्टीट्यूड्स पे इमीडिएटली ओजोन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है और उसी के साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देता है। मतलब क्या? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में हमारा नाइट्रस ऑक्साइड का बहुत बड़ा हाथ है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. So I told you there are two important reactions of dinitrogen. Number one, that preparation of ammonia. मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ? Preparation of ammonia, Haber's process इतना important क्यों है? सर, आपका जितना भी फर्टिलाइजर्स बनते हैं, वहां पे एमोनिया एक रॉ मटेरियल होता है, एक बेसिक चीज जो होता है वो एमोनिया होता है। यूरिया बनाइए या आप कोई भी फर्टिलाइजर बनाइए, उसमें नाइट्रोजन मतलब आप लोगों का एमोनिया जो है पक्का एक जो है रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें एमोनिया एक रॉ मटेरियल जैसा यूज होता है। तो इन सारी चीजों के लिए नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन ही तो हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एमोनिया बनाएगा। सो दैट इज व्हाई मैंने बोला हैबर्स प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट मेथड है, रिएक्शन है, एंड उसके साथ साथ एट 2000 केल्विन एट द एलिवेटेड टेम्परेचर्स नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये मैंने इंपॉर्टेंट करके इसीलिए बताया क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है एक इंपॉर्टेंट सा कंट्रीब्यूटर है। क्या हम लोगों को यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now the final part for this sir, okay, हम लोग देखेंगे uses। डाइनाइट्रोजन के लिए हम लोग देखेंगे uses। तो आप लोगों में से किसको पता है, अभी अभी मैंने कुछ यूजेस बताया अमोनिया नाइट्रोजन के बारे में, क्या है वो? नंबर वन, नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया which is used in fertilizer industries. Yes or no? Yes, sir. Number two, nitrogen can be used to prepare inert atmosphere. क्या आप लोगों को याद आ रहा है? नाइट्रोजन इज ए नॉन रिएक्टिव कंपाउंड। मैंने बोला था चिप्स पैकेट्स में रैंसिडिटी होने से बचाने के आयरन लिए और स्टील के ऊपर, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज में अगर हम लोगों को इनर टेम्परेचर मेंटेन करना है तो ये सारे जो हैं हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छा बात है। अब आगे देखिए सर आप लोग। ओके, इसके अलावा मैंने क्या बोला? एमोनिया बनाने के लिए, राइट, एंड लिक्विड नाइट्रोजन जो है हम लोग इसको रेफ्रिजरेंट जैसा भी यूज करते हैं। मैंने अभी अभी बोला था सेफ लोग यूज करते हैं इसको कोई भी चीज को इमीडिएटली कूल करने के लिए, या फिर आइसक्रीम्स बनाने के लिए, या आइसक्रीम रोल्स बनाने के लिए, या फिर कोई भी ऐसा चीज बनाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। इवन बायोलॉजिकल मटेरियल्स को प्रिजर्व करने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके अलावा वी यूज इट इन क्रायोसर्जरी। What is the meaning of cryosurgery, sir? क्रायोसर्जरी क्या होता है? क्रायो, लो टेम्परेचर। तो हम लोग कोई भी कैंसरस सेल्स जो होते हैं ना हम लोगों के, उसको काटने के लिए, ओके, दो तरीके हैं, या तो लेजर से काट सकते हो आप, नहीं तो आप क्रायोजेनिक क्या करते हैं, एक छोटा सा लिक्विड नाइट्रोजन जो है ड्रॉप्स कैंसरस सेल्स पे डाला जाता है, वो इमीडिएटली उसे फ्रीज कर देता है। फ्रीज कर देने के बाद उसको कट कर दिया जाता है या फिर उसको इमीडिएटली तोड़ दिया जाता है। सो क्रायोसर्जरी भी होता है सर, वेयर वी यूज लिक्विड नाइट्रोजन इन ऑर्डर टू
कट कैंसरस सेल्स और अदर आउटग्रोथ्स जो भी है हमारे बॉडी में, ये बाद में जो लोग एमबीबीएस करेंगे वो लोग समझेंगे। और इस सर चीज वहाँ को पे तो आर्गन भी यूज होता है ना सर, वो क्रायो सर्जरी में? मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है, आर्गन भी शायद यूज हो सकता है, लेकिन मुझे लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में पता है बेटा, आर्गन में सर्च करके बता सकता हूँ तुमको, ठीक है? यस सर, होता है। ठीक है, चलिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर नाइट्रोजन, इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स रिएक्शंस। ओके, तो कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं नाइट्रोजन, प्रॉपर्टीज क्या है नाइट्रोजन का, एंड एज वेल एज योर यूजेस। Is that okay? यस सर। Yes, sir.